Hello students, how are you? Hope you all are fine. Okay, so today we are going to start some applications of trigonometry. In last chapter, we discussed trigonometric ratios, then interrelation between trigonometric ratios, then we discuss trigonometric identities, and now we will do some application part of trigonometry. So the first point is height and distance. So when two objects are given, let us suppose one object is at this place and another object is at this place. From A to B, okay, if any person observing an object lying at the point B from the point A, let us suppose this is the direction of observation of the object B from point A, then person is standing here and this is the eye level of the person and the observation is this, that the direction of observation will be this and the level of eye of the observing person is this, the angle between the direction of observation to his eye level, this angle is, let us suppose alpha, then this angle is known as angle of elevation. And if we draw a perpendicular from object to directly on the line which is parallel to eye level, then this is known as vertical height or height of the object from the level of observation. And if this is the acute angle, then this will be the perpendicular, this will be the base, and this will be the hypotenuse. So that using the basic definition of the trigonometric function for this angle, and by the given two sides out of BH and capital H, we will find the required. So what is the angle of elevation? First of all, we discuss angle of elevation. So angle of elevation is that angle which is the angle made in between the direction of observation and eye level. Now similarly, if any person standing here and if he is observing this person from the point B, then his eye level will be the this and the angle this. Let us suppose this is the beta angle which is made between the line of observation and his eye level from a point which is lies in about direction to the another point, then this angle will be known as angle of diffraction. So of angle of diffraction and angle of elevation is clear. अब एक ही डायग्राम से हम बता देते हैं फिर से. Let us suppose A point है, this is B point है. One person standing at the point A, another person is standing at the point B. The person who is standing here at the point B, then this will be his eye level. Okay, and if one person is standing here and this is the level of observation, then the direction of observation will be from A to will be this. So this angle will be angle of elevation. And if the person standing at the point B and he is observing the point A from B, then this will be the angle of diffraction. So angle of elevation and angle of diffraction are clear. Now we will do some application part. So first question, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of
of vertical pole. So let us suppose this is any vertical pole AB and a circus artist is climbing a 20-meter long rope. इस प्रकार से 20 मीटर लॉन्ग रोप है which is tightly tied one end of the vertical top from point B and another point is on the ground of this rope. So let us suppose if we join A to this base with the, let us suppose C point, that this is your AB vertical top and this BC is the rope along which that artist is climbing on the top of pole. So find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. What is the angle? This is the 30 degree. Angle of elevation is 30 degree and what we have given? We have given only the distance of length of rope. So let the height of this pole be h meter. सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? What is the unit? Unit is here meter in given one unknown. ठीक है? So let the height be h. Then in this right angle triangle AB, so directly we will solve. इस प्रकार से आपको सबसे पहले एक स्केच बनाना है कि where is the pole, where is the rope and what is the base and what is the angle of elevation or depression, whatever given. Now solution कैसे निकालेंगे बेटे? In right angle triangle CAB or BAC, whatever you can say. देखिए किसी भी एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, लॉन्गेस्ट हाइपोटेन्यूस है. सो यहां से अपन एक फंक्शन निकाल रहे हैं, साइन ऑफ 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन BC, बिकॉज इन दोनों दिस साइड वी हैव टू फाइंड आउट एंड दिस इज गिवन एंड दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. सो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, वो एक एक्यूट एंगल है, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस and this will be the base. So this is the perpendicular, this is hypotenuse and this is base. So the interrelation between perpendicular and hypotenuse will be sin theta. So sin theta will be AB upon BC. Now sin 30 is 1 by 2. AB अपने को find out करना, that is h meter and BC is your 20. So h will be equals to 20 upon 2, that is equals to 10 meter. So the vertical height of this pole is 10 meter. Okay, this is the question number first. Let us see second question. Second question is a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree. With the distance between foot of the tree to the point where top touches the ground is 8 meter, find the height of the tree. So, very simple and very important question. Let us see. Let us suppose at the initial stage, this PQ be the given tree. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? Due to storm, this tree is broken from any point in between to P and Q. Let us suppose R point से ये tree drop होता है और due to stop इसका जो टॉप है इस प्रकार से कारों में ड्रॉ जाता है जमीन के किसी पॉइंट यहां पर S पर ये टच हो जाता है. तो ये जो RP पार्ट है this will be in this way touches to the ground level. Now this will be the direct distance from ground level to the foot of tree. So स्केच समझ में आया आपको कि PQ इनिशियल स्टेज में ट्री था, R पॉइंट से वो ब्रोकन हुआ और इन दिस वे वो घूम करके ग्राउंड लेवल पर किसी पॉइंट S को टच कर रहा है. तब अपन ब्रोकन पॉइंट से टचिंग पॉइंट टू द ग्राउंड का जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा दैट विल बी RS होगा. अब ये जमीन को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहां पर ये कितना एंगल बना रहा? 30 डिग्री एंगल बना रहा है.
तो ये जो आर क्यू है ये किसके बराबर होगा, आर एस के। जितना पार्ट ब्रोकन होगा उतना ही तो जमीन पे जाकर के इधर टच होगा। सो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट। अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जहां ये टच कर रहा है वो एस पॉइंट है, फूट आपका पी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर। तब ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री कितना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां से गिवन बेस 8 दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 38 डिग्री दे रखा है। सबसे पहले हाइट जो स्टैंडिंग पार्ट है एट दिस कंडीशन उसको अपन मानेंगे और दिस हाइट को टोटल h के बराबर मानेंगे। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री निकालने का मतलब PQ निकालना, बट इनिशियली हम क्या करेंगे, PR निकालेंगे, फिर PR से RS निकालेंगे और PR और RS को ऐड करेंगे तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। अभी स्टैंडिंग पार्ट की जो हाइट है वो स्मॉल h है। सो सॉल्यूशन क्या होगा बेटे, एज इन फिगर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PRS। देखिए ये है बेस और ये है आपका हाइट। तो अपन क्या करेंगे, RS tan of 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, PR, बेस है आपका PS। तो PR h है और PS आपका 8 है। tan 30 कितना होता है बेटे, 1/√3। सो 1/√3 विल बी इक्वल्स टू h अपॉन 8। दैट इज PS कितना है आपका 8, तो दिस इज द 8। Imply that h will be 8/√3 मीटर। सो जो प्रेजेंटली जो वर्टिकल पार्ट है, जो स्टैंडिंग पार्ट है आफ्टर ब्रोकन, दैट इज 8/√3। अब अपन क्या करेंगे, वर्टिकल पार्ट की हाइट अपने को पता है कि ये 8/√3 मीटर है और दिस इज 8 मीटर है। नाउ हाइपोटेनस निकालेंगे, जो पार्ट ब्रोकन होकर के जमीन को टच कर रहा है उसकी लेंथ क्या है। तो अगेन देखिए sin 30 किसके बराबर होगा, sin 30 विल बी इक्वल्स टू PR अपॉन RS। तो PR आपके पास कितना दे रखा है बेटे, PR आपको पता है 8/√3 और RS अपने को फाइंड आउट करना। sin 30 कितना होगा 1/2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 8/√3 इनटू 1/RS। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RS किसके बराबर हो जाएगा, RS देखो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो RS विल बी इक्वल्स टू 2 into 8/√3 दैट इज 16/√3 मीटर। सो ये पार्ट आया 16/√3 मीटर। नाउ हाइट ऑफ ट्री कितना होगा, तो हाइट ऑफ ट्री आगे यहां सोल्व कर लेते हैं अपन। देखिए हाइट, कैपिटल हाइट विल बी इक्वल्स टू PR प्लस RQ। सो PR अपन ने निकाला 8/√3 प्लस RQ कितना है 16/√3। √3 हम LCM लेंगे तो यहाँ 8 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 24/√3 मीटर। अब इसको भी अपन रेशनलाइज कर सकते हैं, कैसे, 20/√3 एज इट इज रखा और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, √3 और √3 ये 3 हो जाएगा और ये 3 से 8 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली 8√3 विल बी द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यू टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बार बार वीडियो को आप पॉज करें, रिपीट करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो छोटे बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करने का प्लान करता है किसी पार्क में फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं. She prefer to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter. जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए वो स्लाइड इस तरीके से बनाता है कि जो स्लाइड का टॉप है, लेट अस सपोज PQ वर्टिकल हाइट है स्लाइड की, जैसे गार्डन में अपन स्लाइड्स देखते हैं इस प्रकार की जो स्लाइड्स लगी होती है, ठीक है. ये इसका वर्टिकल टॉप है, बैक साइड से एक स्टेप्स होती है जहां से बच्चे उस पर क्लाइंब करके यहां से स्लाइड पर प्ले करते हैं. तो इसका जो वर्टिकल हाइट है 1.5 मीटर है, ठीक है. लेट अस सपोज स्लाइड का जो स्लांट हाइट है वो QR मान लीजिए, देन ये इसका बेस हो गया. एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री. इस स्लाइड का इंक्लाइनेशन कितना है बेटे? 30 डिग्री. मींस जो स्लाइड और बेस के बीच में एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. लेकिन जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं उनके लिए जो वो स्लाइड बनाता है उसकी जो वर्टिकल हाइट है वो 3 मीटर है. देखिए ये 3 मीटर है वर्टिकल हाइट, ये उसकी स्लाइड होगी और ये उसके बीच का बेस है. एंड इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री, और इसका इंक्लाइनेशन कितना है? 60 डिग्री है. लेट अस सपोज A, B and C. BC is the vertical height of the slide and slide का जो inclination है वो CA है. This is the slide inclination CA. क्या पूछ रहा? What should be the length of slide in each case? इन दोनों केस में, ये केस फर्स्ट है जो एज जिन बच्चों की बिलो 5 है और जिन बच्चों की जो एज है वो ग्रेटर देन 5 इयर्स है उनके लिए. तो ये आपका केस सेकंड हो गया. दोनों केस में अपने को स्लाइड की लेंथ कितनी निकाल होगी, दैट वी हैव टू फाइंड. लेट अस सपोज फर्स्ट केस में स्लाइड की जो लेंथ है वो L1 है और सेकंड केस में L2 है. अब देखिए फर्स्ट केस में समझ में आ गया दोनों केस में. फर्स्ट केस ये जिसकी वर्टिकल हाइट ये है, इंक्लाइनेशन 30 डिग्री दे रखा है. सेकंड केस में वर्टिकल हाइट 3 मीटर है, इंक्लाइनेशन अपने को एंगल 60 डिग्री दे रखा है और स्लांट हाइट निकालनी. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखिए सबसे पहले देखना कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन बनेगा. देखो एक्यूट एंगल 30 डिग्री है, सामने वाली साइड ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस, दिस वन इज बेस. ऐसे ही 60 डिग्री ये एंगल है तो ये वर्टिकल हाइट, ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेनस है, ये बेस है. ओके. Now in first case first, in right angled triangle RPQ. RPQ में कौन सा फंक्शन बन रहा है बेटे? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में. तो sin of 30 डिग्री बराबर किसके होगा? sin 30 डिग्री PQ अपॉन QR के बराबर. PQ आपको 1.5 मीटर दे रखा है और QR अपन ने L1 माना जो अपने को फाइंड आउट करना. sin 30 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है टेबल से? 1/2 is equals to 1/5 upon L1 meter. Implies that L1 will be equals to cross multiply L1 into 1 is equals to 2 into 1.3. तो 1.5 into 2 that is 3 मीटर. तो फर्स्ट केस में जो स्लाइड का लेंथ आया वो कितना है? 3 मीटर. अब केस सेकंड क्या है? इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC क्या दे रखा है? साइन ऑफ 60 डिग्री विल बी इक्वल टू, देखिए इन दोनों में अगेन साइन फंक्शन का रिलेशन होगा. साइन 60 किसके बराबर होगा? BC अपॉन CA. BC अपॉन CA. BC कितना है? 3. CA अपन ने L2 माना, ठीक है. implies that sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे? √3/2 is equals to 3 upon L2. ओके. यहां से L2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 किसके बराबर आ जाएगा? L2 will be 6 upon √3 मीटर.
अब 6/√3 मीटर को भी अपन क्या करेंगे, √3 से अगर ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे तो नीचे √3 3 2 जा 6 तो 2√3 तो सिंपली L2 बराबर आया आपका 2√3 मीटर। ओके, सो फर्स्ट केस में स्लाइड की लेंथ 3 मीटर थी, सेकंड केस में स्लाइड की जो लेंथ है वो 2√3 मीटर है। ओके, सो हाउ द क्वेश्चन इज क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर दे रखा है, लेट अस सपोज RS एक टावर है और इस टावर का क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज। देखो ग्राउंड पे कोई पॉइंट क्या है, P है, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन the angle of elevation of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away। देखो यहां से ये 30 मीटर अवे है, क्या टॉप ऑफ टावर का टॉप S है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट P है, P से S की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है एंड अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। थोड़ा सा इसने लैंग्वेज लिस्ट किया है कि सीधी सीधी भाषा में आपको ये समझना है कि एक टावर है RS जिसके टॉप का ग्राउंड पे किसी पॉइंट P से डिस्टेंस 30 मीटर है और उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 मीटर। मतलब आपको वर्टिकल हाइट तो फाइंड आउट करनी है, ये स्लांट हाइट दे रखी है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल PRS में क्या होगा, साइन ऑफ 30 डिग्री बराबर RS अपॉन ST। साइन 30 कितना होता है बेटे, 1/2। RS कितना दे रखा है, RS अपन ने h मीटर माना है, डिनोमिनेटर आपका 30 दे रखा है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा 30 को उधर मल्टीप्लाई कर दे तो h will be 30/2 मीटर, दैट इज 15 मीटर। तो वर्टिकल हाइट कितना आ गया बेटे, 15 मीटर आ गया। यही अपने को फाइंड आउट करना। ओके, अगर अपने को यहाँ ये भी निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में 10-30 का रिलेशन ले लिए। वैसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है कि ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसकी टावर के फुट से डिस्टेंस कितनी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो अपन क्या करेंगे 10-30 का रिलेशन लेंगे। 10-30 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका 15 है, बेस आप लेट अस सपोज बेस ही मान ले, अपने को b निकालना है। 10-30 कितना होता है बेटे, 1/√3 इज इक्वल टू 15/p, implies that b किसके बराबर हो जाएगा, b बराबर 15 into √3 मीटर। तो पोल के फुट का बेस ग्राउंड पे जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस कितनी होगी, 15√3 मीटर। और द क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a kite is flying at a height of 60 meter मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है is flying at a height of 60 मीटर above the ground। ये देखिए, ये ग्राउंड लेवल है और एक जो काइट है लेट अस सपोज कितनी हाइट पे फ्लाई कर रही है, 60 मीटर पे। बट हाइट जब भी बात करते हैं ध्यान रखिए बेटे, वर्टिकल हाइट से मीनिंग होता है द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। टेम्परेरीली, जनरली काइट को अपन टाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मोमेंटरी जैसे ही होगी, वो उसका जो फ्लाइंग पॉइंट है वो रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बनाया कि किसी मोमेंट पे लेट अस सपोज जब उसकी हाइट 60 मीटर थी, उसकी जो स्ट्रिंग थी उसको ग्राउंड के किसी पॉइंट ए पर जैसे अपन ने टाइट कर दिया, BC उसकी वर्टिकल हाइट है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री और
ये जो स्ट्रिंग है इसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। जब भी अपन काइट फ्लाई करते हैं, अभी देखो 14 मकर संक्रांति पे आप सब लोगों ने काइट फ्लाई किया हो, जब हम फ्लाई करते हैं तो बार-बार स्ट्रिंग को क्या करते हैं, पुश एंड पुल करते हैं ताकि काइट क्या है, एक हाइट पर जाए। लेकिन मोमेंटरी किसी मोमेंट पे माना कि लेट अस को 60 मीटर हाइट पे थी, उसी मोमेंट पे अचानक अपन ने उस स्ट्रिंग को क्या है, ग्राउंड के किसी पॉइंट पर टाइट कर दिया और स्ट्रिंग में किसी प्रकार का स्ट्रेन नहीं था, स्लेक नहीं था, सॉरी स्लेक का मतलब जो कार्व जो बनता है उसमें अप एंड डाउन वाला वो नहीं था, बिल्कुल सीधी खींची हुई थी। तब ये कह रहा है कि इसकी स्लांट हाइट जो है L कितनी है स्ट्रिंग की। सो वेरी सिंपल, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बेटे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ABC में क्या होगा, देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट आपकी हाइपोटेन्यूज और ये आपका बेस होगा। ये केवल नोटेशन आपको समझने के लिए बता रहा हूं, जरूरी नहीं एग्जाम में आप इस प्रकार का मार्किंग करें, वो आपको समझना है। देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है, वो sin थीटा का होता है। तो थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री किसके बराबर होगा, BC अपॉन CA के। BC आपको 60 मीटर दे रखा है और CA आपको फाइंड आउट करना है, उसको अपन ने L माना है, ठीक है। तो यहाँ से sin 60 डिग्री कितना होता है बेटे, √3/2 न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू 60 अपॉन L। यहाँ से L की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए L √3 into L is equals to 60 into 2 implies that L की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, 120 upon √3 मीटर। अब ये एक आंसर ये है, बुक में आंसर क्या हो सकता है बेटे, इसको रेशनलाइज करके भी दिया हो सकता है, क्योंकि जनरली अपन साइड्स क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में लीव नहीं करते हैं। तो 120 अपॉन √3 से अपन ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो डिनोमिनेटर में √3 कितना हो गया 3, और 3 से ये कितने बार होगा 40 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 40 into √3 मीटर। दिस विल बी द स्लांट हाइट ऑफ द स्ट्रिंग। यही आपका क्वेश्चन है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, share it and subscribe it, and stay with us so that you can see the next video. Thank you.